Hello guys, good morning. Good morning all of you. Today we are here for discussing about the Primavera P6. Okay? As you all know, the Primavera P6 is the basically project management software that is used for managing the project. How can you manage the project? How can you define your project completion tasks? These all things that comes under your Primavera. I hope you all are very aware about the Primavera. So, today we are here for presenting the Primavera. So, basically, what is Primavera P6? Basically, Primavera P6 is the project management software and that is originated by the Oracle. Oracle, that is US based company. Why the name of the Primavera is the name along with the project management? Just because we can manage a lots of project and the multiple project and a very large project on the Primavera. Basically, right nowadays, if you will be talk about any of the industry, any of the little industry or the big industry, so the Primavera should be like used, and of course the Primavera is using very well. Just because the features of the Primavera that is interconnected and that is connected with the ERP systems, that is the live system by which you can track your project, by which you can uh, go for the live for the project, and you'll be generate and report the project, and of course you can publish the project also. So today we are here and starting the Primavera first session, that is the class 1. So basically, what does Primavera do and what are the learning features of the Primavera? So we will discuss about this. First of all, we will go with the introductions to Primavera or the any of the project management, how the project management life cycle will goes on. So first of all, of course, you guys are aware how can we start for the Primavera and how can we take any of the project. So first of all, अगर मैं बात करूँ प्राइमेवेरा का यूज़ क्या है, प्राइमेवेरा इतना पॉपुलर क्यों है आज के डेज में? सो द मेन रीज़न इज़ दैट प्राइमेवेरा बहुत प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है। आप वन टाइम में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी हैंडल कर सकते हो प्राइमेवेरा में, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है प्राइमेवेरा के कंपैरिजन में। अगर आपने एमएसपी का नाम सुना होगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, सो दैट इज सिमिलर काइंड ऑफ द प्राइमेवेरा और द सिमिलर काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, but that is not using right now nowadays just because of Primavera, just because Primavera is very consistent. So that's why we are starting the Primavera and we are learning it. So our key features is that we will learn कैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो प्राइमवेरा में, कैसे उस पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट्स में एक्टिविटीज ऐड कर सकते हो, रिसोर्सेज ऐड कर सकते हो. सो दीज ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर योर प्राइमवेरा. सो आई एम स्टार्टिंग माई प्राइमवेरा P6 that you are able to see in my screen. See, this is my Primavera P6 window. इस विंडो पे आप देख रहे हो there is four dividation in this window. I'm just customizing it. The first divide is that is activities that you can see in this panel. The second divide is that at right hand side that is showing some type of chart. That is the Gantt chart. Gantt Gantt chart. What is the Gantt chart? Gantt chart will shows about like how many percentage of work you have completed, how many percentage of work it is still remaining for completions of the project. So that will shows by the blue color, green color, and the red color. Of course, we will discuss in the very detailed. The third, that is you are seeing at the left bottom portions, that is your activity users or the activity users profile that you can say, in which you can maintain your activity, you can sustain your activity. And the last one, that is your fourth, that is showing, that is your resources users profile, by which you can control the resource management. So कैसे आप किसी प्रोजेक्ट्स को बनाते हो, कैसे आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑन दिस क्लास. So you will be actually aware how does Primavera work. I'm opening any of the project that I'll have created. Suppose I'm opening this project. This is I have created. See.
this project is created. So this is the project with the name of city center office building additions. So what you'll have to need it during the project creations. सपोज देयर इज अ कंपनी जो कि टेंडर लॉन्च करती है इन एक्चुअली में. सपोज देयर इज अ ए कंपनी दैट इज लॉन्चिंग द टेंडर. लॉन्चिंग द टेंडर. ये कंपनी कोई भी हो सकती है. सपोज L&T है जो आपके हाईवे कंस्ट्रक्शंस का प्रोजेक्ट डील कर रही है. सो जैसे ही टेंडर लॉन्च होता है तो कोई ना कोई कंपनी इस टेंडर को ओवरटेक करती है. सपोज दैट कंपनी विल बी और मे बी द सी और मे बी द डी. So the main company that is initiating the tender, that is called the EPS, Enterprising Project Structure. Okay. And the sub distributions company that is taking the project, that is called your OBS, that is Organizational Work Breakdown Structure. So you can see in the Primavera, there is a main company that is City Center Office Building Additions. So these are the different projects under that: design and engineering, foundations work, structure work, another work that is mechanical works. You can see. So these are your projects. So first of all, we will aware and we will go through with the terminology that will be used in the Primavera, and it is very commonly technical terms. So I'm just opening that so you can see in this window from starting to end what does the technical terms means. Okay, so see, this is the content that we will studied. The first of all, the EPS. EPS is your enterprising project structure. Basically, EPS मेन कंपनी होती है जिसके थ्रू किसी भी टेंडर को डिलीवर किया जाता है एंड किसी भी सब कंपनी को वो टेंडर दिया जाता है. डब्ल्यू बी एस वो कंपनी होती है जो कि उस टेंडर को टेक करती है या उस टेंडर को कैरी करती है फॉर अपकमिंग वर्क. जैसे कि अगर L&T ने इंडियन गवर्नमेंट ने कोई टेंडर लॉन्च किया हाईवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एंड L&T ने उस पर्टिकुलर हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर किया. सो द ईपीएस वुड बी आर इंडियन गवर्नमेंट एंड द डब्ल्यू would be your L&T. After that, there is a third term that is organizational breakdown structure. ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मीन्स जो जो भी वर्क है. सपोज हाईवे कंस्ट्रक्शन का वर्क है. सो वो जो हाईवे कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो बहुत अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड होगा. राइट. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सर्वे वर्क. सेकेंड ऑफ ऑल देयर इज अ ड्राइंग वर्क. थर्ड ऑफ ऑल सो देयर इज अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज that will comes under your work, so that all working capacities are coming under your OBS, that is organizational breakdown structure. So you can see I'm just opening what the user interface means. Primavera EPS. Okay. So you can see there is a EPS. Okay. Like first of all you can see engineering and construction is the main EPS. So this type, ये आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है प्राइमावेरा का. जैसे ही आपकी फर्स्ट विंडो ओपन होगी, सो ईपीएस इज योर मेन कंपनी that is giving the tender or that is taking the tender, that is called enterprising project structure. After that, that project has divided into different parts or the many of the parts, so that is called the project that you can see. Okay. After that, I'm coming on the work breakdown structure. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड होता है. विदाउट लेवल किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है. सो वो जो डिवाइडेशंस ऑफ द वर्क है between the companies and between the organizations, that is called your WBS. WBS is a grouping of work. The grouping of project work can be based on the work type, area, or the phase. So these are called your WBS. Okay, this is called your WBS. So I'm again coming on that PDF. After that there is a OBS, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. अब कोई भी टेंडर स्टार्ट होता है या कोई भी वर्किंग स्टार्ट होती है तो
someone is responsible for that. Okay, suppose कोई भी work start हुआ, so general manager would be there, engineer would be there, or the worker would be there. So these all are comes under your organization, कि इस ऑर्गेनाइजेशंस के बेस्ड पे काम होनी है। हर एक पर्सन की एक डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी है एंड एक डिफरेंट डिफरेंट डिवाइडेशंस ऑफ द वर्क है। सो दैट इज कम्स अंडर योर ऑर्गेनाइजेशंस। सो दैट इज कॉल्ड योर ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। Okay, the third one, that is I'm coming on that, that is activity. Activity is the very lowest task that we will have to do. What is activity? सपोज कोई भी वर्क बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, सो उन पार्ट्स के भी सब पार्ट होंगे, तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी को आप वर्क भी बोल सकते हैं, कि सपोज फर्स्ट वर्क है आपका सर्वे वर्क, एंड सर्वे वर्क के अंदर आपने एक्सकेवेशन किया या फिर कल्टीवेशंस किया। सो दैट इज योर एक्टिविटी। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क दैट इज कॉल्ड योर एक्टिविटी। Okay, after that, there is another technical term that is critical path. Critical path means that is the path that is needed, or the smallest part that is needed for completions of the activity or completions of the task. So this is your critical task. Okay, you can see. After that, there is a Gantt chart. Gantt chart मैंने आपको अभी बताया था. See, this is our Gantt chart. This is your Gantt chart that is showing at the लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज योर गैंट चार्ट। गैंट चार्ट बेसिकली आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएगा, कितनी परसेंटेज ऑफ द वर्क कंप्लीशन हो गया है वो बताएगा, कितनी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं वो बताएगा। सो दीज ऑल आर कम्स अंडर योर गैंट चार्ट। गैंट चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज इसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट्स की ट्रैकिंग मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट there is a baseline. What is baseline? The baseline is a project plan that consists of the predetermined work. Like maybe it will be labor work or the material work or the financial work. So baseline is the line that is responsible for completing the work. Suppose मैंने कोई भी एक एक्टिविटी ली, excavations की एक्टिविटी ली, एंड मैंने बोला कि दिस शुड बी कंप्लीट ऑन द 15 डेज। सो वो जो 15 डेज है दैट इज योर बेस लाइन। ओके, सो हर एक प्रोजेक्ट और हर एक एक्टिविटी के लिए देयर विल बी मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटी, देयर विल बी मल्टीपल टाइप ऑफ baseline. Okay, after that there is another term that is called constraint. You can see the constraint is here. See, so constraint mean was a constraint is a limit set. Okay, सपोज कोई भी एक्टिविटी आप करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो आपको भी पता है देयर इज अ लिमिटेशंस। ओके, आपको एक विद इन टाइम पीरियड के अंदर पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सो आपका प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। सो डेट इज कम्स अंडर योर कंस्ट्रेंट। ओके, constraint is basically the limit that is divided for your project and that is responsible for your completing the work. If you'll be goes like after then the constraint, so your project will be loss making, and if you'll be finish your work before then your constraint limit, so it will be profit making project. After that, there is a earned value. अर्न वैल्यू मीन्स जो भी आप परफॉर्म करते हो, कॉस्ट कैलकुलेशंस करते हो, तो उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट, इन टर्म्स ऑफ लाइक बजटेड कॉस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबल बजट। सो दीज ऑल आर कम्स अंडर योर अर्न वैल्यू। एस कर्व बेसिकली आपके रिसोर्सेज यूजेस प्रोफाइल को बताता है। जैसे आप इस विंडो पे देख रहे हैं, अगर मैं रिसोर्सेज प्रोफाइल यूजेस प्रोफाइल ओपन करता हूँ, सी this is I have opened my resources uses profile. You can see at the right hand side. See, or you can see like that. So resources uses profile बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए, जस्ट बिकॉज आपका जो कंपैरिजन है एक्चुअल बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट,
इसके बीच में जो कंपैरिजन करता है दैट इज योर रिसोर्सेज यूजेस प्रोफाइल. सो दैट इज कॉल्ड द एस कर्व इन जनरल लाइफ. ओके, जब आप किसी भी कंपनी में वर्क करेंगे सो आपको एस कर्व भी मेंटेन करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट. सो अलोंग विद द एस कर्व कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर ये जान सकता है कि आपकी वर्क प्रोग्रेस कितनी है, बजटेड कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट क्या आने वाली है, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं हो रहा है, या फिर है लॉस तो कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, या उस लॉस को कैसे मेंटेन कर सकते हो. सो दैट इज ऑल things that comes under your S curve. Okay. After that, there is another technical term that is resource. Resource in the Primavera consists of labor, equipment, or the material or the financial sources. ओके, सो बेसिकली रिसोर्सेज क्या होते हैं. कोई भी आप टास्क कंप्लीट करोगे या कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइक वर्कर्स और नंबर ऑफ पर्सन्स अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सपोज फर्स्ट आपने डिज़ाइन ड्राइंग की, सो डिज़ाइन ड्राइंग के लिए इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है, उस डिज़ाइन ड्राइंग के एग्जीक्यूशंस के लिए वर्कर रिस्पॉन्सिबल है, साइट एक्सकेवेशंस के लिए लेबर रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं मनी पे, एंड मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपनी हेड, एंड कंपनी हेड रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के लिए. सो दीज आर द इंटरकनेक्टेड प्रोफाइल that is called your resource. Okay, that is comes under your resources part. Yeah, we can install the Primavera. That is the process of the installations of the Primavera that would be very easy. First, you'll be join the course. Then after that, we will send the file uh, of the Primavera on which you can easily install. Don't to worry about this. Okay. So after that, there is a resource leveling. Resource leveling means sometimes क्या होता है, आपके सारे रिसोर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो कुछ लॉस मेकिंग होता है, कुछ प्रॉफिट मेकिंग होता है, कभी कोई एब्सेंस होता है, कभी कोई डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाता है. सो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट प्रॉफिट पे जाए, लॉस ना हो, उसके लिए आपको लेवलिंग करनी ज़रूरी है रिसोर्सेज की. सो डेट ऑल आर कम्स अंडर योर रिसोर्सेज लेवलिंग. अगला है that is CPM, that is your critical path method. Critical path method is used for the scheduling. Okay, scheduling means how can we schedule, like जो भी आपने प्रोजेक्ट परफॉर्म किया है उसका एक पूरा शेड्यूल कंपैरिजन होता है प्राइमेवेरा विजुअलाइजर के थ्रू. सो दैट मेथड इज कॉल्ड योर CPM. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेशनशिप, ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करने हैं आपके प्राइमेवेरा में. रिलेशनशिप क्या होती है, देयर इज अ फोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप. फर्स्ट S2F, सेकंड F2F, थर्ड इज F2S, एंड S2S. these four types of relationships are there. basically इन relationships का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मल्टीपल डिवाइडेशंस किया है वर्क का. सो मे बी देयर इज अ वर्क वन, देयर इज अ वर्क टू. सो आई टेल यू व्हाट इज द relationship. There is a four type of relationship. So I'm telling you what does it mean and ये कैसे वर्क करते हैं आपके स्ट्रक्चर्स में. सी, सो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी S2S. S2S और यू कैन से स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट. सेकंड एक्टिविटी इज योर S2F, that is your start to finish. Okay, the third activity is F2F, that is your finish to finish. And the fourth activity is your F2S, that is your finish to start. सो ये सारी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है. सपोज कोई भी वर्क है, अगर मैं एग्जांपल के लिए आई एम जस्ट टेकिंग एनी ऑफ द एग्जांपल. सपोज यहाँ पे अलग अलग वर्क हैं. देर इज अ वर्क ए, देन देर इज अ वर्क बी, then there is a work C, and there is a work D, and there is a work
ई। अब ये सारे अलग अलग वर्क है जो कि आपकी कंपनी में होने हैं। बट अगर आप फर्स्ट रिलेशनशिप लगाओगे इन वर्क्स के बीच में, सो इसका मतलब ये है कि जब वर्क ए खत्म होगा तभी आपका वर्क बी स्टार्ट हो सकता है। जस्ट बिकॉज, सॉरी, द फर्स्ट एक्टिविटी इज स्टार्ट टू स्टार्ट। सपोज आपको सारे वर्क एक साथ स्टार्ट करने हैं, ओके, आप मल्टीपल वर्क एक साथ कर सकते हैं। सो यू कैन डू द रिलेशनशिप दैट इज स्टार्ट टू स्टार्ट, मतलब कि अगर वर्क इज स्टार्टेड along with the work B, along with the work C, and along with the work D is also getting started. Okay, the second thing, that is start to finish. Start to finish means whether work A will be completed, after that the work B will be started. Okay, like एक वर्क कंप्लीट होने के बाद ही आपका दूसरा वर्क स्टार्ट होगा, so that is comes under your work start to finish. After that there is a third relationship, that is finish to finish. Finish to finish का मीन्स है कि अगर वर्क ए कंप्लीट होगा तभी आप तभी वर्क बी भी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है सो देयर इज सम लैग, सब लैग डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके कारण प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग हो सकता है। सो वो सारी चीज़ अपन डीपली स्टडीज करेंगे। आफ्टर दैट द अनदर इज, दैट इज फिनिश टू स्टार्ट. Finish to start means whenever the activity work A will be finished or the B will be finished, after that the C will be getting started or the D will be getting started. So these are the activities that are the responsible for making any of the projects. Okay. So after that there is another technical term, that is percentage physical complete. The percentage physical complete means कोई भी वर्क है जो आप स्टार्ट करते हो, आफ्टर डेट आपको उस प्रोजेक्ट का परसेंटेज कंप्लीट हर मंथ में या फिर हर एक वीक में देखना ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज आपका लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट ना हो एंड सारी चीज़ें रेगुलर चल रही हो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए। सो दिस विल बी योर physical percentage complete. After that, there is a duration percentage complete. There is a duration. Durations means duration is the length of work done. Free float means the amount of work period in which the activity can be delayed. कभी कभी आपकी कोई भी एक्टिविटी डिलेड हो जाती है, सो जितना भी डेज या जितने भी टाइम से वो डिले होती है दैट इज कॉल्ड योर फ्री फ्लोट। एंड अगर टोटल सम ऑफ द फ्री फ्लोट दैट इज कॉल्ड योर टोटल फ्लोट। स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब स्टार्ट डेट आप और वाइज भी कर सकते हो एंड डेज वाइज भी कर सकते हो। ओके, देयर इज अ फिनिश डेट। फिनिश डेट अगर आप डिफाइन करोगे, सो आपका प्रोजेक्ट इस फिनिश डेट में फिनिश होना चाहिए। सो दीज आर द टेक्निकल टर्म। अर्ली स्टार्ट, कभी कभी आपको पहले स्टार्ट करना पड़ता है, सो आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि वी आर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी एज अर्ली and we are finishing this activity at early finish. So these are the definitions that you'll have to do during the activities. Late start means sometimes some of the activities will getting started after some times or after that didn't you define for the given period, so that all comes under your late start. And late finish is also like that. So these are the terminology that you'll have to follow or you'll have to maintain during your project. Okay, I'll send you this PDF so you will be easily understand about the terms that will be used in the Primavera. So again, I'm coming on the Primavera and I'm taking any of the example to understanding the thing. What does Primavera work? So जैसे ही आप ओपन करते हो Primavera, your first task that you'll have to select the industries. So for that you'll have to go for the admin preferences. जैसे ही आप एडमिन प्रेफरेंसेस पे जाओगे, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इंडस्ट्री का सिलेक्शन कर सकते हो जिस भी इंडस्ट्री के लिए आप वर्क कर रहे हो। ओके, सपोज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो ये आपने चूज कर लिया। ओके, द सेकंड थिंग इज योर रेट टाइप। अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, सो आपको भी पता है, या फिर क्वांटिटी वाइज वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, या डे वाइज वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, या मटेरियल के साथ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, या विदाउट मटेरियल स्टार्ट होता है। सो हियर यू विल हैव टू मैनेज दैट थिंग्स
कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है. There is 5 category, or other than this you can create also. After that there is a option for the calendar. Okay, calendar means आपको वीकली आपके प्रोजेक्ट में ट्रैकिंग करनी है या फिर मंथली आपके प्रोजेक्ट में ट्रैकिंग करनी है. ओके, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर वीकली बेसिस पे ट्रैकिंग चाहते हैं प्रोजेक्ट की, सो आप वीकली कर सकते हो. कुछ प्रोजेक्ट्स मैनेजर मंथली बेसिस पे ट्रैकिंग चाहते हैं, सो आप ट्रैकिंग कर सकते हो. अगर बाय कैलेंडर आपको नहीं जाना है तो यू कैन गो बाय द फाइनेंशियल पीरियड. फाइनेंशियल पीरियड के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल पीरियड ये यूज होता है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो 3-4 साल चलने वाले हैं. सो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड यू विल बी गेटिंग the data, you will be getting some reports, you will be publishing some of the reports, so by which you can go for the financial period. There is option for the reports. Okay, so reports में आपको क्या चाहिए, suppose reports में चाहिए हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सो आप कस्टमाइज कर सकते हो हाईवे प्रोजेक्ट के नेम से. ओके, सो दीज आर द रिपोर्ट्स. अर्न वैल्यू, अर्न वैल्यू में आपकी वही चीज़ें आ जाती हैं. आप हमेशा अर्न वैल्यू पे एक्टिविटी परसेंटेज कंप्लीट ही क्लिक करें, जस्ट बिकॉज डेट विल सोज द कंप्लीशंस एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉस्ट डिफाइन हो जाएगी. सो दीज आर द जनरल टर्मिनोलॉजी. दिस इज द जनरल. ये आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक क्या चाहिए, सो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि संडे विल बी आवर फर्स्ट डे, मंडे विल बी आवर फर्स्ट डे. सो ये आपके ऊपर है डिफाइन करना कि आप स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक क्या लेके चल रहे हो. ओके, सो यू कैन डिफाइन फॉर द एक्टिविटीज ऑल्सो. सी, सो समटाइम्स आप इसको संडे चूज करते हो या फिर मंडे चूज करते हो, सो ये अपने ऊपर है डिफाइन करना, ये आप कर सकते हो. ये सब करने के बाद यू विल हैव टू गो फॉर द करेंसीज. जस्ट बिकॉज आपकी प्राइमवेरा में इंडियन करेंसी का ऑप्शन नहीं है, तो आपको इंडियन करेंसी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके, बिफोर क्रिएटिंग द इंडियन करेंसी you will have to create the calendar, okay, in which you will have to work. So these are the different toolbars: file, edit, view, project, enterprise, tools. So these all are your toolbars. आपको सबसे पहले कैलेंडर चूज करना पड़ेगा. दिस इज योर कैलेंडर. ओके, कैलेंडर में आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक क्या होना चाहिए, एक दिन में कितने घंटे वर्क हो रहा है उस कंपनी में, किस दिन छुट्टी है, किस दिन हॉलीडेज हैं, किस दिन वापस से वर्क स्टार्ट हो रहा है. सो डेट ऑल विल बी कम्स अंडर योर कैलेंडर. सो हाउ कैन यू क्रिएट, सपोज आप ऐड पे गए, देयर इज अ ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग द कैलेंडर, सो यू विल हैव टू गो फॉर द प्लस. सपोज मैंने नेम दे दिया, डेट इज जनवरी, जनवरी कैलेंडर. आई एम जस्ट क्लिकिंग इट एंड आई एम जस्ट मॉडिफाइंग इट. एंड जनवरी वर्क्स में मैं आके यहाँ पे सबसे पहले तो देखो टोटल वर्क्स और पर डे है, जो आप दे सकते हो कि दिन में सिर्फ 8 आवर्स ही काम होना चाहिए. ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस है वर्क करने के, नॉन वर्क करने के. सपोज आप नॉन वर्क करोगे किसी भी चीज़ को, सपोज मैंने 6 को नॉन वर्क किया, तो ये देखो नॉन वर्क हो गया. 13 को नॉन वर्क किया तो ये नॉन वर्क हो गया. इसका मतलब ये है कि इस दिन हॉलीडे है. सो आप अपना जो कैलेंडर है मंथली वो प्रिपेयर कर सकते हो ड्यूरिंग द वर्किंग बेसिस और ड्यूरिंग द नॉन वर्किंग बेसिस. राइट नाउ मैंने सैटरडे और संडे 2 दिन मैंने नॉन वर्किंग की हुई है, सो डेट्स वाई सैटरडे एंड संडे आपका नॉन वर्किंग कैटेगरी में आ रहा है. ओके, एंड मेरा जो वीक स्टार्ट है वो मंडे से है एंड वीक जो फिनिश है वो फ्राइडे पे है. सो आई एम जस्ट टेकिंग द 8.0. ओके, एंड आई एम जस्ट एक्टिवेटिंग दिस कैलेंडर. ओके, आई एम जस्ट एक्टिवेटिंग दिस कैलेंडर एंड ओके इट. जैसे ही आप कैलेंडर ओके करोगे एंड वापस एडमिन प्रेफरेंसेस पे आओगे, सो वो यहाँ पे अपडेट हो गया होगा. जैसे मंडे मैंने लिया है स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक, सो ये आपका मंडे ही यहाँ पे शो करेगा.
Other than this, you can change also, but you don't need to change. After that, what you will have to do, you'll have to come for the currencies. Just because यहाँ पे इंडियन करेंसी का ऑप्शन नहीं है, सो आपको इंडियन करेंसी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. ओके, जैसे मैंने ये ऐड की हुई है. कैसे ऐड करते हैं? गो फॉर द ऐड. यहाँ पे आपने नेम दे दिया, इसको डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपने नोटेशंस डाल दिया. सपोज INR इंडियन करेंसी, इसको आपने नेम दे दिया इंडियन रूपी. साइन आपने दे दिया. व्हाट शुड बी द साइन? सपोज RS विल बी द साइन. वैल्यू दे दी. तो ये सिंपली ऐड हो गया आपकी करेंसी में. सिंपली ऐड हो गया. और भी आप अलग चीजें ऐड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो. That is very easy. Okay, so we will learn these all things with very detail. So this is, सबसे पहले मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में कैलेंडर सेट किया. आफ्टर दैट मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में करेंसी सेट की. एंड बिफोर दैट मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट चूज किया. टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा है. ओके, so right now I'm telling you about the features of the Primavera, so you guys will be easily understand Primavera कैसे काम करता है. ओके, so see, ये मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ये EPS है एंड ये मेरे WBS हैं, डिफरेंट डिफरेंट, एंड इनके अंदर में ये मेरा एक्टिविटीज है. ओके, सो ये आपने बनाया. आप देख सकते हो इस पैनल में कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड है. सी, आपने हर एक एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे डेज दे दिए कि 24 दिन में मेरा ये एक्सकेवेशन वर्क फिनिश होना चाहिए. और एक्चुअली कंप्लीशन होने में भी मुझे 24 दिन लगे. सो यहाँ पे आपकी डेट भी आ जाएगी एंड यहाँ पे टोटल फ्रूट भी आ जाएगा कि कितने से कितने में काम हुआ. आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं. ओके, यू कैन राइट डाउन एंड गो फॉर द कॉलम्स. एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी. कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो, एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, या फिर एक्चुअल एक्सपेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, एक्चुअल टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है. सो दीज ऑल थिंग्स दैट यू कैन ऐड. जैसे ही आप ऐड करोगे, सो आप देख पाओगे कि आपकी ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं. सी, ओके, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट. सी, दिस इज, ये आपके एक्चुअल लेबर कॉस्टिंग भी शो कर रहा है उन वर्क के लिए जो आपके कंप्लीट हो गए हैं. अब कौन से कंप्लीट हो गए कौन से नहीं हुए हैं, सो यू कैन सी इन द गैंट चार्ट. सी, जो ग्रीन लाइन से शो हो रहे हैं वो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट जो ब्लू लाइन से शो हो रहे हैं वो वर्क आपके कंप्लीट हो रहे हैं. सो ब्लू वाले वर्क में ये ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्टिंग दे देगा. एंड ग्रीन वाले वर्क में ये अभी कॉस्टिंग नहीं दिया है, जस्ट बिकॉज आपके ये जो वर्क हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऐड. उसके बाद मैंने आपको रिसोर्सेज बताए थे, तो ये देखो, ये नीचे वाली जो विंडो है, करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियंस भी इन्वॉल्व है, एक्सकेवेटर भी, कारपेंटर भी, HVAC मैनेजर भी. सो दीज आर योर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज ऐसे तो अलग से कुछ नहीं होते हैं. रिसोर्सेज मतलब पर्सन और द वर्कर दैट इज इन्वॉल्व फॉर योर प्रोजेक्ट. ओके, सपोज मेन कंपनी के लिए, डेटा के लिए जनरल मैनेजर या प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल है. आफ्टर दैट देयर विल बी एनी टाइप ऑफ इंजीनियर, एंड इंजीनियर के अंडर पे बहुत सारे वर्कर हैं, उन वर्कर के अंडर पे बहुत सारे सब वर्कर हैं. सो दीज ऑल आर कम्स अंडर योर रिसोर्सेज. एंड जैसे ही आप रिसोर्सेज के जस्ट बगल में देख रहे हो, दिस इज योर रिसोर्सेज यूजेस प्रोफाइल. यहाँ पे इसी के थ्रू ही आपको कॉस्ट देखने मिल रही है, इसी के थ्रू ही आप कॉस्ट मेंटेन कर पा रहे हो. ये आपका ग्राफ है एंड इट इज कॉल्ड एस कर्व ऑल्सो. ओके, एंड ये आपका गैंट चार्ट है. गैंट चार्ट आपको हर एक एक्टिविटी के कंप्लीशंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है. जो ब्लू मार्क्ड हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो ग्रीन लाइन है वो कंप्लीट चल रही हैं या कंप्लीट होने वाली हैं, और जो रेड मार्क है उसका मतलब है कि आपकी एक्टिविटी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है. रेड मार्क मतलब. ओके, सो दिस इज योर एक्टिविटीज. ओके, आफ्टर दैट, this is the window for opening your project. See, I have created these 10 to 12 projects. You can create the multiple project on that. Okay, this is very easy. सभी projects के लिए आप different different database
क्रिएट कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट लॉकिंग सिस्टम कर सकते हो। सपोज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कोई इंजीनियर ए हैंडल कर रहा है, एनर्जी सर्विसेज कोई इंजीनियर बी हैंडल कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कोई सी हैंडल कर रहा है, तो सभी के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम के साथ डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड दे सकते हो, जो कि इजी रहेगा। ओके, सो दिस इज योर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग विंडो जो आप देख पा रहे हो वेरी सिंपली। आफ्टर दैट we will discuss about some of the terms that is important। जैसे आप एंटरप्राइज में आओगे तो यहाँ पे देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है जो मैंने अभी आपको बताए हैं टेक्निकल टर्म्स में। प्रोजेक्ट का क्या है, एंटरप्राइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रैक कैसे कर सकते हो, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ओबीएस क्या होते हैं, प्रोजेक्ट कोड्स क्या होते हैं, कैलेंडर्स क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंट क्या होते हैं। कॉस्ट अकाउंट मतलब जैसे ही आप कॉस्ट अकाउंट में जाओगे तो ये एक अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप मैनेजिंग करते हो पूरे प्रोजेक्ट्स की। ओके, सो ये सारे टेक्निकल टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट के अंदर पे आपको एक्टिविटीज मिलेंगी, डब्ल्यू मिलेंगे। सी, दिस इज योर डब्ल्यू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो आपका वर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड होता है। सी, ये आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। सी, स्ट्रक्चर का वर्क, प्लम्बिंग का वर्क, एलिवेटर का वर्क, एचवीएसी का वर्क, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, पेंट वर्क, प्लम्बिंग एंड लाइटिंग वर्क। सो आप इजीली वे में ये समझने की कोशिश करो, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि प्राइमावेरा आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर और कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पैकेज आपको प्रोवाइड करता है। प्राइमावेरा को करने के बाद यू डोंट नीड टू गो विथ एनी अदर सॉफ्टवेयर। आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट टास्क है प्राइमावेरा पूरा सॉल्व करके दे देता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड एंडिंग फ्रॉम द कॉस्टिंग। ओके, so these are the general resources WBS that we have assigned। टूल्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। शेड्यूल्स मैंने आपको बताए हैं क्या होते हैं। शेड्यूल इज द कंपैरिजन, सो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आल्सो। एंड सबसे मेन फीचर जो आपका है डेट इज योर पब्लिश। पब्लिश क्या होता है, सपोज आप वर्क कर रहे हो जयपुर में। ओके, आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है जयपुर में लेकिन आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में। अब आपको ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो आपके मैनेजर को भेजनी है या आप जो हेड ऑफिस है वहां पे भेजनी है। तो आप पूरा प्रिंट करके तो भेजोगे नहीं, एंड पूरा प्रिंट करके भेजोगे तो वो चीज़ समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी मैनेजर को। सो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं रिपोर्ट जनरेशन और पब्लिशिंग के। जैसे ही आप रिपोर्ट्स पे जाते हो सो आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। व्हेन आई कम टू द रिपोर्ट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स है जो मैंने प्रिपेयर्ड की हुई है। सपोज आई एम जस्ट गोइंग फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, एनी ऑफ द रिपोर्ट्स, ओपनिंग दिस, रन रिपोर्ट, print preview I am just taking। So when I'll be do the print preview it will show you each and everything कि उस reports में क्या included है। See, this will be your report। ओके, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग है। सो आप ऐसा बना भी सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड पब्लिश भी कर सकते हैं। सी, सो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं या जो बड़ा प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डेटाबेस तैयार होता है डेट ऑल आर कम्स अंडर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, सो आफ्टर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे पब्लिशिंग का, आप वेबसाइट के थ्रू भी पब्लिश कर सकते हो एंड लेआउट्स के थ्रू भी पब्लिश कर सकते हो। सो अगर मैं प्रोजेक्ट वेबसाइट्स के थ्रू पब्लिश करता हूँ सो दिस विल आस्क यू टू सेव दिस फाइल। सो सबसे पहले मुझे अपने इसके लिए ओपन डायरेक्टरी मेंटेन करनी होगी। तो आई एम जस्ट टेकिंग एनी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट एंड नेमिंग इट पब्लिश, coming on the Primavera, taking publish, and I'm just taking my folder on which my website will be published,
So I'm coming on this, and under this I want to publish. You can go for the website. Suppose मैंने वेबसाइट का जो नेम दिया वो दिया buildeducation.com. ओके, लास्ट पब्लिश, टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड करने हैं आपको, ग्राफिक्स में क्या चाहिए, रिपोर्ट्स आपको कौन कौन सी चाहिए, सो सारी रिपोर्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो, जितनी रिपोर्ट्स ऐड करना चाहो जो आपने क्रिएट की हैं, सभी के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा क्रिएट कर सकते हो. सो आई एम जस्ट टेकिंग एनी ऑफ द एग्जांपल. सो ये मैंने बहुत सारी यहाँ पे रिपोर्ट्स एडिट कर ली. ग्रुप्स चाहिए आपको, आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ले सकते हो. मैं पूरा ही प्रोजेक्ट ले लेता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, बेटर अंडरस्टैंडिंग. ट्रैकिंग लेआउट चाहिए आपको, ये सारे ट्रैकिंग लेआउट्स होते हैं, लेबर कॉस्ट, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन, दीज ऑल. मैं इनको भी ले लेता हूँ, रिपोर्ट्स, एंड आई एम जस्ट पब्लिशिंग इट. सो ये आपके उस फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगी ये रिपोर्ट्स. सी दिस इज टेकिंग टाइम जस्ट बिकॉज ये ऑनलाइन पब्लिश हो रही है, एंड आप इसको ऑनलाइन ओपन कर सकते हो. ये एक वेबसाइट के फॉर्मेट में ओपन हो के आ जाती है. दिस इज कॉल्ड योर ईआरपी सिस्टम इन द प्राइमेवेरा. डेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, ये आपके दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको देखने नहीं मिलेगा, बट प्राइमेवेरा में ये चीज़ें पॉसिबल हैं. So this is taking the time for generating our reports, and after getting the generating the reports, we can see on that directory also. So basically Primavera will provide you the complete project management package. Primavera को करके आप किसी भी इंडस्ट्री में एज अ प्लानिंग इंजीनियर और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इजीली प्लेस्ड हो सकते हैं. एंड मार्केट डिमांड प्राइमेवेरा की अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रही है, so you can go with that. Okay, so this is taking the time for generating the project, and after that we will go for that. Okay, so this is taking the time, and this is generating the project. This is a very big report, that's why it is taking the time. But when you'll be getting some of the small reports or some of the small publishing, that will take. See, this is saved, and when you will be click for the open, this will be directly open through your website. See, www.buildindiaeducations.com, published in the 7 January. When you'll be click for the enter, so see, ये आपकी एक वेबसाइट के जैसे ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं. WBS पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, सो आपको डिटेल्स दिख जाएगी WBS की. रिसोर्सेज पे आप क्लिक करोगे, ये देखो ये आपके रिसोर्स दिख गए. रोल्स पे आप क्लिक करोगे, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं. जो जो पर्सन्स आपके अपॉइंट हुए हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे. कोड्स पे क्लिक करोगे, आपने कौन कौन से कोड्स यूज़ किए हैं प्रोजेक्ट में वो दिख जाएंगे. इशूज़ पे क्लिक करोगे, अभी तो मैंने कोई इशू और कोई भी रिस्क मैनेज नहीं किए हैं. आफ्टर डेट रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे हैं along with your website, जैसे आप क्लिक करोगे. So these are the things that is the very popular in the Primavera. See, this is the different types of report. So you can print it also and you can publish it also. जैसे ही आप ये पब्लिश करके आपके हेड ऑफिस को फॉरवर्ड करोगे, सो दे विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट सिचुएशंस आर, हाउ मेनी टेक्स, how many days it will takes to completion the project, any time of lag, any type of delays in the activity. So these all are comes under your this part. Okay, see, this is clear. This is your activity. See, this is showing the costing also, because I have attached this activity percentage complete, completions cost, these all things that I have attached. That's why it is showing the costing of the project also.
So that is very important to getting a solution in only one publishing report for your big project or for your large project. So that is so important. Okay, so these are the reports. इसके अलावा देयर इज़ अ ऑप्शन फॉर द शेड्यूल कंपैरिजन ऑल्सो, तो वो फीचर्स भी मैं आपको बताता हूँ. व्हेन यू विल बी क्लिक ऑन द विजुअलाइजर, so the another software of the Primavera or another plugin will be opened along with when you'll be install the Primavera, that will automatically open. So that is called the visualizer. Visualizer में आप सिर्फ चीज़ों को देख सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो. सपोज आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो एंड आपको कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है आपके जनरल मैनेजर के सामने या फिर कंपनी हेड के सामने. So what you will be used Primavera P6 visualizer, by which you can visualize or by which you can present your report in front of your team member or in front of your head of the team member. Okay, so that is also the very important, that is Primavera visualizer. And there is different things. There is three things that is different. There is three different things are schedule comparison, so you can go with any of the things. जब आप किसी भी एक टाइम के साथ जाओगे, सपोज मैं TSLD पे जाता हूँ, टाइम स्केल लॉजिकल डायग्राम, सो आपका यहाँ पे टाइम स्केल लॉजिकल डायग्राम ओपन हो जाएगा एंड बाय विच आप सारी एक्टिविटीज को कंपेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंपेयर कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट कैलकुलेशंस को कंपेयर कर सकते हैं. See, so I'm just taking any of the project that is I'll have created and clicking for the next, naming it the project report, and click on the draw, so it will automatically draw your time scale logical diagram. Okay, by which you can compare, by which you can present your things in front of your team member, by which each of one that will be easily understand what is the situations of the project, what are the things involved in your project. So these are also very important that will be comes along with your Primavera. So Primavera में बहुत अलग अलग फीचर्स हैं जो आपको कंपनी मॉड्यूल्स के हिसाब से बहुत प्रोडक्टिव बनाते हैं. द मेनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी. दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. वी विल completely help you in this. And of course, when you'll be start project, so what will be the steps for starting the project and how will be complete the project. So these all are packages, these all are the things that will be along with your project. Okay, so this is taking the time for creating the time scale logical diagram. So during this I'm just coming on the my Primavera. So these are the things that is involved. Okay, when you'll be click for the directly printing, so you can go for the printing also with the help of Control P. And suppose I'm just printing all of the pages, so how it will be print, that is also very easy. And you can store it in your things. सी वेबसाइट्स में ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज वी हैन गिवन इट. So when you'll be saved it, so it will be directly printed also. So यहाँ पे आपके Primavera में directly print का भी options है जो आपको थोड़ा सा different बनाता है. That is saying report is printed. So this is the also the main features in the Primavera. This is again taking the time. So on while I'm coming on my desktop, and that I'll have created the printing reports also. So when you'll be click for that, when you'll be click for your printing report, so this will be look like that. Okay, you can see what kinds of the things that you all have printed. See, we have printed all the things like activities, day according to the dates, according to the things that we have printed. So that's why it is showing like that.
Okay, this is also the very best feature that makes the Primavera very productive. So basically, guys, Primavera will provide you the complete project management package in which you can manage your project, in which you can start your project, and in which you can calculate each and everything like about your cost calculations, about your risk calculations, about your things that are very necessary for project creations. So these all things that you'll have to keep in mind. Okay, this will get you one time solution for each and everything. Okay, so that is very important nowadays, so you can go with that. Okay, see, so these are all some of the basics introductions and some of the basics overview about the Primavera. When you'll be go with very detailed, so we will cover these all topics very deeply and regularly. Okay, very soon we will upload our syllabus of the Primavera, so you can easily understand what are the things that we will provide, what are the topics that we will cover. Of course, we will cover each and everything that I have told you in this class, but we will provide you along with the soft copies also. Okay? Yeah, guys, okay. So, thanks a lot. Thank you, all of you. We would be present at Primavera Day second lecture tomorrow also. Okay? Just manage your things and just attend your sessions. Okay? Thank you.